یہ 5 سنڈے کا جلوس خاموشی کا تھا. یا گل کر لو یا گل سن لو, یا گل کر لو یا گل سن لو. کی چاہتے سننا کہ گل کرنی چاہتے؟ پھر ذرا 10 منٹ خاموشی. توبہ کر لو, توبہ کر لو, ورنہ سفر جنت والا گہرا ہے. توبہ کر لو ورنہ سفر جنت والا گہرا ہے. جنت کے 12 دروازوں پہ 12 فرشتوں کا پہرا ہے. سمجھے؟ خاموش دنیا اپنی کہانی کیسے سنائی یسوع. خاموش دنیا اپنی کہانی کیسے سنائی یسوع کو. تیرے دل کے دروازے پہ یسوع آ کے ٹھہرا ہے. توبہ کر لو ورنہ سفر جنت والا گہرا ہے. ہم نے 4-5 باتیں سنی. پہلے میں آج اپنی زندگی کی گواہی دینا چاہتا ہوں. میں ساری عمر اپنی گواہی نہیں دی, ساری عمر. میری دادی جس کا نام دادی بھی تھا, وہ بیتنیا چرچ کی ممبر تھی. میں 6-7 سال کا تھا. ہر روز صبح 4 بجے بیتنیا کا چرچ ہمارے گاؤں ماڈل پور میں ہوتا تھا, تو میں اپنی دادی کے ساتھ جاتا تھا. یہ بات اگر آپ سنیں گے تو شاید مجھ سے زیادہ برکت آپ کو نصیب ہو سکے. تو بیتنیا چرچ کے اندر 4 لوگ خدا کے خادم تھے جو بھگت تھے. پہلے کا نام بھگت بورا تھا, دوسرے کا نام بھگت الفریڈ تھا, تو اسی طرح تیسرے کا نام بھگت پیٹر تھا. یہ بیتنیا چرچ کے اندر خدمت کرتے تھے. اور چوتھے کا نام بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 4 لوگ مجھ سے بہت پہ تھے. میں چھوٹا تھا, ان کی عمر تقریباً 70-80 سال تھی, جو خدا کی خدمت ہر روز صبح 4 بجے بلا نالا چتر لگتا تھا. اور میری دادی وہاں جاتی تھی. صبح میں 4 بجے اپنے دادی کے ساتھ جاتا تھا بیتنیا کے چرچ. تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیتنیا مشن جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے ہے. بیتنیا کا گاؤں جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے ہے. یہ بیتنیا کا گاؤں جہاں سے جلوس نکلا, جہاں سے آج کا جلوس نکلا, یہ کہاں سے نکلا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سنا ہے اس سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جلوس شروع کہاں سے ہوا اور ختم کہاں؟ بیتنیا گاؤں میں لازر نام کا ایک آدمی تھا. یہ بیتنیا کا گاؤں زیتون کے پہاڑ پر تھا. زیتون کا پہاڑ سطح سمندر سے 2600 فٹ کی بلندی پر ہے, اور اسی پہاڑ پر بیتنیا کا گاؤں تھا جس کو یسوع نے زندہ کیا. 4 دن کا مدعا تھا, تو یسوع نے لازر کو زندہ کیا. تو کون سے کیا جی؟ سمجھ آ رہی کہ آپ نے لوگوں کو سکھانا ہے. یہ آپ نے سنا ہے اپنی یسوع نے زندہ کیا. جس دن یسوع نے لازر کو زندہ کیا, تو لازر کے زندہ ہونے کے دوسرے دن بعد یہ جلوس نکلا. لازر کو یسوع نے زندہ کیا, تو دوسرے دن بعد کیا نکلا؟ جلوس پام سنڈے. تو بائبل میں لکھا ہے
अगर यूना की जी 12 बार पूरा पढ़े तो आपको समझ आ सकते कि यीशु ने जब लाजर को जिंदा किया तो उसी रात यीशु के पांव पर लाजर की बहन ने अतर डाला 3 सुबह। कहाँ पर डाला? बैतनिया के गांव में। यीशु का इस्तेमाल कहाँ हुआ? बैतनिया के गांव में। कुछ दिन के बाद एक और मरियम नाम की औरत है जिसका नाम मरियम मगदलीनी है। उसने भी बैतनिया के गांव में शमौन कोढ़ी के घर में यीशु के सिर पर दबा। पहली ने कहाँ डाला? पांव पर। दूसरी ने कहाँ डाला? सर पर। और 2 औरतें अलग अलग हैं। एक बैतनिया की रहने वाली है, एक मरियम मगदलीनी मगदला गांव के रहने वाली है। लेकिन अतर दोनों ने बैतनिया गांव में डाला। इज्जत यीशु की कहाँ की गई? बैतनिया। अगर आप 12 दृष्टि पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि लाजर के जिंदा होने के दूसरे दिन बाद बहुत सी कौमें यीशु को देखने आई, यीशु का इस्तेमाल करने के लिए आई और यीशु को और लाजर को देखने के लिए। अगर यीशु ने गैर कौमों के लिए ईमान का दरवाजा खोला तो बैतनिया में। समझानी बात? अगर यीशु ने गैर कौमों के लिए दरवाजा खोला है तो बैतनिया गांव में, क्योंकि बैतनिया में सारे लोग खजूर की डालियां लेकर यीशु का इस्तेमाल करते। कुछ लोग गैर कौमों के ज्यादा थे तो कुछ लोगों ने कहा सारी दुनिया यीशु की पैरोकार हो चुकी है, इसको मार दे। लाजर को भी मार दे और यीशु को भी मार दे ताकि ये शोहरत यीशु की मामले है खत्म हो। इसके बाद अगर आप 20 और 21 याद पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लोग यूनानी थे, कुछ लोग गुलकार थे। इतना हजूम था कि वो यीशु को देख ना सके। तो उन लोगों ने कहा यीशु के शागिर्द को, फिलिप्पस को, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं? कि दुनिया इतनी थी कि यीशु की शनाख्त नहीं कर सकती। जब तक आपने किसी भी इंसान को देखा ना हो, नाम सुना हो, लेकिन उसको पहचान नहीं सकते। तो क्या हुआ? बैते सदाई के लोग और यूनानी लोग फिलिप्पस के पास आए, यीशु के शागिर्द के पास। उन्होंने दरख्वास्त की जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं जिसके नाम पर होशना के नारे लगाए जाते हैं। ये होशना का नारा बैतनिया में लगाया गया। जलूस पाम संडे का बैतनिया गांव से निकला तो यीशु ने सबसे बड़े मोजे बैतनिया में किए। यीशु ने बपतिस्मा बैतनिया में लिया। आज मैं आपके सामने ये चंद बातें रखना चाहता हूं। जब यीशु ने जलूस को निकाला, एक तयशुदा बात थी। ज़िकरिया नबी ने 487 साल मसीह के पैदा होने से पहले ये पेशन गोई की थी। ज़िकरिया किताब 9 बाब की 9 में लिखा है कि यीशु गधी के बच्चे पर सवारी करेगा। यीशु क्या करेगा? गधी के बच्चे पर। और लोग घोषणा के नारे लगाएंगे, यीशु को पुकारेंगे, यीशु की तारीफ। तो अगर आप मत्ती की इंजील देखते हैं 21 बाब 1 से 11 तक, तो यीशु बैतनिया में था। तो यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि सामने गांव में जाओ, बैतफिगा में जाओ। बैतफिगा गांव बैतनिया के सामने था, जो तुम के बाहर था। तो ऐसा हुआ कि उसने कहा वहां की गधी है और साथ उसका बच्चा है, दोनों को ले आओ।
क्या करो, दोनों को ले आओ। वो दोनों को ले आए। यीशु ने लोगों से कहा गधी पर भी कपड़े डालो और इसके बच्चे पर भी कपड़े। गधी के बच्चे का सबको पता है, गधी का नहीं पता कि उसको भी सुझाया गया या नहीं। गधी पर भी कपड़े डालो, गधी के बच्चे पर भी कपड़े। सफर करना, जलूस का सफर। जब सफर कर रहे थे तो 2600 फुट की बुलंदी से यीशु ने जलूस लेकर नीचे उतरना। समझ आ रही बात? 2600 फुट की बुलंदी से जलूस लेकर यीशु ने उतरना है। 2600 फुट की बुलंदी से नीचे उतर के 2 मील यरूशलेम में जाना। यरूशलेम में जाकर गधा की पट्टी पर सुलेमान की हैकल है, उसकी ऊंचाई 2350 फुट है। उस हैकल पर चलना। जलूस खत्म कहाँ हुआ? सुलेमानी हैकल के। शुरू कहाँ से हुआ? बैतनिया गांव से, यानी कि जैतून के पहाड़ से। यानी 2600 फुट की ऊंचाई उतरना, फिर चढ़ना। 2300 फुट की ऊंचाई चढ़ना, फिर उतरना। 2 मील का सफर जाना और फिर वापस आना। कितना सफर करता है? एक ही दिन में ये सारा सफर तय किया। तो मत्ती की झील 21 बाब 12 कोई भी पढ़े, एक ही याद पढ़नी। पढ़ेगा तुम? इक्की बाब की 12, मत्ती की इंजील 21 बाब की 12। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर इन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीद और फरोख्त कर रहे थे। क्या किया यीशु ने? जलूस लेकर कहाँ गया यीशु? सुलेमान की हैकल में। तो जब जलूस वाले दिन यीशु ने देखा कि आज सुलेमान की हैकल में तजारत हो रही है। क्या हो रही है? कोई कबूतर खरीद रहा है, कोई सोना खरीद रहा है, खूबसूरत लोग अंदाज से अपना काम कर रहे हैं। तो यीशु ने क्या किया? जलूस को खत्म कहाँ किया? सुलेमान की हैकल में। ये कहाँ है? ये कोमोरिया पहाड़ पर है। कोमोरिया पहाड़ सतह समुद्र से 2350 फुट की बुलंदी पर है। उसके ऊपर हैकल की अपनी ऊंचाई 180 है। जहाँ पर जाकर जलूस खत्म हुआ और वहाँ पर लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे। तो यीशु ने कहा तुमने मेरे बाप के घर को तजारत का घर बना रखा है, निकल जाओ यहाँ से। जब ये जलूस खत्म हुआ तो इतना ही सफर करके फिर बैतनिया में। कहाँ है जी? और शागिर्दों के भी जेल जब तक कोई खोलेगा, यीशु ना खोले, तब तक किसी को पता नहीं चलता। लूका की इंजील 24 बाब उसकी 45 आयत से 50 आयत तक आप देख सकते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जब जलूस से वापस आए, बैतनिया में आए, तो यीशु ने आखिरी बरकत अपने शागिर्दों को बैतनिया में दी। यीशु ने अपने शागिर्दों को आखिरी बरकत कहाँ दी? बैतनिया में दी। तो बैतनिया में आखिरी बरकत देकर उनसे जुदा हो गया और उनसे कहा कि आज मैंने आपका ज़हन रोशन कर दिया है, ज़हन खोल दिया है, मैं सलीब पर जाऊंगा। तो लिखा है इब्ने आदम सलीब पर जाएगा, मर जाएगा, दफन हो जाएगा, तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। ये तालीम देकर यीशु ने 50 आदमी पढ़ा। लोगों के लिए 24 बाब। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया था, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे वाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस
शहर में ठहरे। अगर फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया। कहाँ ले गया? अगर यीशु ने खुद बपतिस्मा लिया तो बैतनिया में, शागिर्दों को कुव्वत का लिबास दिया तो बैतनिया में, शागिर्दों को आखिरी बरकत दी तो बैतनिया में, यीशु ने अगर जुलूस का आगाज किया तो कहाँ शुरू किया? बैतनिया में। इसके बाद यीशु अलग हो गया अपने शागिर्दों से। यीशु मर गया, यीशु जिंदा हो गया, यीशु आसमान पर चढ़ गया। तो आखिरी तनीम यीशु ने मरकज की नींद 16 बाब 15, 16, 17 हम देखेंगे कि लिखा यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को बैतनिया में ये तलीम दी कि सारी दुनिया में जाओ, अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात, जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदलों को। ये तलीम यीशु ने आसमान पर जाते वक्त बैतनिया में दी। उन्हीं आती सी गर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया। क्या हो गया? यीशु अपने शागिर्दों को आखिरी तलीम देकर कहाँ चला गया? आसमान पर जाते यीशु को बेशुमार लोगों ने देखा। पहला कुरिन्थियों का खत 15 बाब 30 आयत में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि मैंने यीशु को आसमान पर जाते देखा। पहले कैफा ने देखा, फिर कई लोगों ने देखा, फिर 500 लोगों ने देखा, फिर 12 शागिर्दों ने देखा, फिर और कई शागिर्दों ने देखा। आखिर में कहता है मैंने भी यीशु को आसमान पर जाते। यीशु अचानक आसमान पर नहीं गया। कमाल की किताब पहला बाब की 10वीं आयत में लिखा है, यीशु जब आसमान पर जा रहा था तो बेशुमार लोगों को साथ ले गया, लाखों मुर्दों को जिंदा करके साथ ले गया। तो 2 फरिश्ते आगे, उन्होंने लोगों से बताया यीशु के शागिर्द सब गलीली थे, गलील के रहने वाले थे। गलील भी बैतनिया लोगों के साथ ही है। आए गलीली मर्दो, तुम आसमान की तरफ क्या देखते हो? यही यीशु जैसे आपने आसमान पर जाते देखा है वैसे ही वापस वो आज आखिरी वाला कुर्सियों का खत, चंद बातें इर्सियों का खत लंबा है, इर्सियों का खत 4 बाब उसकी 8वीं है। यीशु अकेला आसमान पर नहीं गया, यीशु लाखों मुर्दों को जिंदा करके आसमान पर ले गया। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। क्या कहना गया यीशु जी? जब यीशु आसमान पर गया आलमे बाला पर, तो जितने भी मुर्दे लाखों की तादाद में यीशु जिंदा किए थे वो सबको साथ ले गया। आगे और आदमियों को अनाम दिए गए। इसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में। इसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है कि यीशु जमीन के नीचे भी 3 दिन रहा। अब यीशु क्या कहता है? देख मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कोई तेरे पास उसे थामे रहता कि कोई तेरा ताज छीन। यीशु दोबारा हमें लेने के लिए आ रहा है। खुदावंद इसी कलाम पर मुझे राज आए हम सब अपनी आंखें बंद करें, शुक्रगुजारी के लिए हम दुआ करेंगे। तुम्हारे दरमियान साहब हैं वो आएंगे और दुआ करेंगे खुदा की शुक्रगुजारी के लिए। और इससे पहले हम दुआ करें, एक ऐलान है, अपनी अपनी जूती पहननी है। पहले मर्द हजरात जाएंगे, पहले बैठी रहेंगी यहाँ पे। अगर मर्द हजरात उठते हैं तो आपने उठना नहीं है, जहाँ पे बैठे हैं आप रास्ता छोड़ के वहीं पे बैठे रहना है। जब मर्द हजरात सारे बाहर निकल जाएंगे, अपने जूते पहन के बाहर जाएंगे, उसके बाद पहने जाएंगी बारी बारी से। ये नहीं कि उधम मचाना है, शोर करना है। अपनी ही जूती पहने, अगर पुरानी पहनते हैं पुरानी पहन के जाने की, नई पहननी है
نہیں پہن کے آئے تو نہیں, کسی کا جوتا نہیں, برکت دینے کی بجائے یہ نہ ہو کہ کچھ اور لے کے جائیں. شکریہ. ابھی ہم دعا کریں. اسی سارے اپنی اکھیں بند کریے, خدا دی بات رسول سے دعا کریے. جلال کے بادشاہ, تو جو رحم, پیار, محبت اور قدرت سے بنا ہو خدا, آج اس خوبصورت دن کے لیے تیرا لاکھوں بار بلکہ کروڑوں بار تیرا شکر ادا کرتا ہوں.